हियर मी क्लियरली। इसमें से आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। यस। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नामदु नसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहान का बनाने वाला है और उसका चलाने वाला है। और बेशुमार दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज टुडे वी ऑल आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पाकिज़ा मैम, the school management, for organizing this workshop, and I thank you all also, all the students, teachers and your school management for participating in this competition and sending you here to understand some basics about communication skill, especially when you participate in competitions. So first of all, I'll set the agenda, what we are going to learn today. So simply I have put the key points on screen. You can see we are going to learn about public speaking, debating skills, group discussion. We are going to learn about stage presence and handling objections during debates and content writing. I hope these are the key points which matters a lot. Am I right on this? Because I know most of you, every now and then you participate in speech competitions, because I can see many faces. I saw them in many competitions. So I really appreciate the kind of enthusiasm you have, the kind of interest you have in speeches. So what I believe, that a little information to your knowledge can improve your communication skill and you can perform even better in your competitions. So the purpose of organizing this workshop is to provide you some do's and don'ts about speech competitions, debate competitions. Why we have decided to organize this workshop? Because all are taking efforts. You are taking efforts, school is taking efforts, teachers are taking efforts, but somewhere we don't see that level of competition. जिस लेवल का कंपटीशन होना चाहिए वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है. Means if there are 50 participants, 50-60 participants, so hardly we see that only 4-5 students are very good, they perform very well, they impress everyone. So it doesn't look good, it doesn't look a competitive competition. It seems that there are some few students and always they win. So we decided that we should organize a workshop where we can provide you some basic skills of communication. So we'll see what are the basic skills of communication. Okay, this is the first purpose of this workshop. Second, the way you are participating in speech competitions, is it okay if I use only English or Hindi also? All are from English medium? Okay, means I think competition is in English only. Okay, but I'll use Hindi also, ठीक है, because the purpose is taking away message. The purpose is कि आप यहां से एक मैसेज लेकर जाओ, ठीक है. तो इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का दूसरा पर्पस ये भी है कि आज आप इस स्टेज पे जो स्पीचेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे प्राइज जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो, ये एक स्किल है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है. इवन आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ,
ये आपकी स्पीकिंग एबिलिटी जो है, ये आपको किसी भी प्रोफेशन में एडवांटेज दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बिकम अ टीचर, सो टीचिंग रिक्वायर्स अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. If you become a salesperson, marketing person, there also you need communication skill. If you become a manager in a company, you need very good communication skills to deal with your team members. If you become a generalist, reporter, if you become a reporter, there also you need communication skills. So believe me, almost every field requires communication skill. And if it is with stage presence, then it is added advantage. Because I'll share my experience. During my school time and college time, I never participated in speech competitions. I was very scared. I was very frightened. Later on, after completing my college, after completing my post graduation, I started delivering speeches. So just imagine, अगर मैंने स्कूल से ही शुरू कर दिया होता तो आज मोदी जी की जगह होता हमेशा। तो आज आप में से कई लोग मुझे यूट्यूब पर भी देखते ही होंगे, तो मेरा काम ही है पब्लिक स्पीकिंग करना। मोर देन 1000 पब्लिक टॉक्स आई हैव डिलीवर्ड। लेकिन मेरा प्रिपरेशन आप जैसा नहीं है। आप लोगों का प्रिपरेशन तो बहुत अर्ली स्टेज से शुरू हो गया है। यानी एट द age of 32 I started speaking on stage. और आप लोग अभी इस एज से अगर आप पब्लिक स्पीकिंग आपने इंप्रूव करना शुरू कर दिए, सो जस्ट इमेजिन कि आप कहां जा सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं कि पब्लिक स्पीकिंग का मुझे कैसे फायदा हुआ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीकॉम से है, लेकिन मैं किसी बैंक में या फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब नहीं करता। फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग किया, बट आई एम नॉट इन मार्केटिंग फील्ड। देन आई डिड माय एमए बीएड। आई एम नॉट टीचिंग इन अ स्कूल और अ कॉलेज। तो मेरा जितना फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कहीं भी मेरे करंट प्रोफेशन से मैच नहीं करता। सो मैं जिस प्रोफेशन में आज हूं, मीन्स आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो ये मेरा जो आज जो प्रोफेशन मेरा चल रहा है पिछले 12 साल से, ये सिर्फ और सिर्फ उस एक स्किल की वजह से चल रहा है जो मैंने डेवलप की, एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल। सो यू कैन नॉट इमेजिन कि कौन सी स्किल कब काम आएगी आपको। So what I want to prove here, that whatever we study, whatever degrees we get, it's not necessary that you will make career in that respective field. एक स्किल अगर आप अच्छे से डेवलप कर लेते हो और अगर उस स्किल की मार्केट में डिमांड है, तो आप अपना पूरा करियर उस स्किल के बिना पर बना सकते हो। एंड आई एम द एग्जाम्पल। as I said, completed BCom, MBA, MA, B.Ed. But none of this educational background is leading my profession. My profession is all about one skill, that is public speaking. So public speaking is very essential skill. Whichever profession you go, आपको हर प्रोफेशन में काम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो इसका इफेक्टिव होना, इसका एफिशिएंट होना, इसका इंपैक्टफुल होना इसलिए जरूरी है कि जो लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, दे वांट टू टेक अ मैसेज अवे। वो एक मैसेज लेकर जाना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका प्रेजेंस ऑफ स्टेज, अगर ये इन्फ्लुएंसिंग है, अगर ये इंप्रेसिव है, तो आपका स्टेज पे खड़े होकर बोलना न सिर्फ आपको प्राइज जिताएगा, बल्कि जो लोग आपको सुन रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ तो चेंज आ जाएगा आपकी स्पीच की थ्रू। तो यहां पर पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स, एलोकेशन स्किल्स सीखने के ये सारे पर्पस है। अब अगर नहीं सीखेंगे तो क्या होता है, ये भी आपके सामने रखता हूं मैं। आपने पार्टिसिपेट कर लिया और अगर आप किसी कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है ना।
बहुत ही रिग्रेट फील होता है, बहुत पछतावा होता है, और फिर उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना, है ना, और उसके बाद फिर आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है, या देखने वाले आपके बारे में जज कर लेते हैं, नहीं नहीं इसके बस की बात नहीं है। यानी आपने प्रिपेयर बहुत किया, यू हैव स्किल्स, यू आर इंटरेस्टेड, बट बिकॉज ऑफ सम माइनर मिस्टेक अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो या आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जाता है, तो एक तो आप खुद से ही डिसाइड कर लेते हो कि आई एम नॉट कैपेबल, या लोग आपको कमेंट करते कि यू आर नॉट कैपेबल। तो इसीलिए ये स्किल सीखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आई अप्लाइड ऑल टेक्निक्स, दो आई लूज, भले ही मैं हार जाऊं लेकिन आई एम सेटिस्फाइड, मैंने सारे स्किल्स अप्लाई किए, मैंने सारे टेक्निक इस्तेमाल किए। हाँ, जो जीता उसने मुझसे बेहतर किया था। कम से कम ये सेटिस्फेक्शन आपको रहना चाहिए ताकि आप अगले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ऐसे कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं कि जिन्होंने एक बार पार्टिसिपेट किया, किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए या प्राइज नहीं जीत पाए, उसके बाद उन्होंने कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन। ठीक है, चलिए, सो आज के हमारे इस वर्कशॉप में वी विल टॉक अबाउट 4 एरियाज। ओके, 1, the common preparation for all kinds of allocative competition, whether it is speech competition, whether it is debate competition, discussion, presentation, whatever, wherever we need communication, वो सारे कंपटीशन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, कॉमन पार्ट। सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट डिबेट। ठीक है, डिबेट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिबेट। देन we'll talk about content writing, how to write the content, because I hope you all have made the content, सभी ने लिखा है content. And the final one, how to have a positive mindset. एक positive mindset कैसे रखना चाहिए, ठीक है, because what we are doing, we are making everything on paper, we are making everything on paper and we are completely unaware of our mindset. और होता है ना ऐसे, आपने घर बैठे पेपर पे तो बहुत कुछ बना लिया लेकिन स्टेज पर जाकर ब्लैंक हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो आप। सो चौथा जो पार्ट है हमारा वो ये है कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, चाहे आप स्पीच कंपटीशन के लिए जा रहे हो या आप डिबेट कंपटीशन के लिए जा रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ माइंडसेट यू शुड कैरी। ओके, एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर आल्सो। ओके, चलिए, सो विल स्टार्ट विद the common preparation, how to prepare for any competition where communication is required. Okay, can we have the next slide please? Next, yes, wait. So as I said, we will learn about the competition where communication is required. Okay, so speech communication की जरूरत है, डिबेट कम्युनिकेशन की जरूरत है, डिस्कशन कम्युनिकेशन की जरूरत है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन की जरूरत है, इंटरव्यू कम्युनिकेशन की जरूरत है। ठीक है, सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ओके, स्पीकिंग इज अ वन वे प्रोसेस। स्पीकिंग इज व्हाट, कि मैं बात कर रहा हूं, आप सुनो चाहे नहीं सुनो, मैं बात कर रहा हूं चाहे आपको मेरा मैसेज समझ में आए या ना समझ में आए। व्हाट इज स्पीकिंग? मैं बोले जा रहा हूं चाहे आप मुझे रिस्पॉन्स दो या ना दो। दिस इज स्पीकिंग, इट्स अ वन वे प्रोसेस। बट व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट्स अ टू वे प्रोसेस। इफ आई से समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड, इफ आई से समथिंग यू शुड एक्सेप्ट, if I ask you to do something you should respond. यानी कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स चाहिए कि अगर मैं कुछ यहां से कहता हूं या मैं कुछ करता हूं तो मुझे वहां से रिस्पॉन्स आना चाहिए। और स्पीच कॉम्पिटिशंस जो होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन
को नजर में रख के डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सी व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, टेक इट बैक। तो कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वर्ड्स होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है और टोन होता है। यस, ये आप लोगों ने स्टडी की है, इसके लिए प्रिपेयर भी किया होगा आपने कि कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। आप बता सकते हो किसको कितना? स्लाइड मैंने होप किसी ने देखा नहीं होगा। हाँ, वर्ड्स को कितना परसेंटेज देंगे? यस, हाँ, वर्ड्स के लिए 50%। ओके, तो 50% में बॉडी लैंग्वेज और टोन रह गया। यू वांट टू से दैट? ओके, अगेन एनीवन? देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, यू जस्ट आंसर। एनीबॉडी कैन आंसर। 75% फॉर words. ओके, एंड इन 25% बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। ओके, अगेन एनीवन? Sir, 50% for body language. 50% body language. Okay, 40 for words and 10 for tone. tone. Okay, again anyone? 35% body language. Okay, remaining 65 में words and tone है. Okay, again 65% for what? for words. Words. Please sit down. Now I will show you. Yes. Major of the percentage should go to the body language and the tone we are using. Okay. Less amount of percentage should go to the words we use. Very close. Very close. And sir, answer is somewhere very close to my answer. Now I will show you. Okay. I will show you one finding of a scholar. There was a scholar, his name was Dr. Albert Mehrabian. He studied communication for 20 years. अल्बर्ट मेहराबियन ने कम्युनिकेशन को 20 साल स्टडी किया और उसके बाद उसने एक रिपोर्ट सबमिट की कि कम्युनिकेशन के जो 3 एलिमेंट हैं, वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और टोन, फिर उसने उसको परसेंटेज दिया। तो उसने परसेंटेज कैसे दिया? नेक्स्ट, he gave only 7% to words. What is it? The words play only 7% role in your communication. Only 7%. Okay. Your tone plays 38% role. The tone is important for 38%. And the body language plays more than 50%. 55% role is played by your body language. Isn't it surprise for you? है surprise सभी के लिए? Because most of the time we are concerned about only words and words. But you don't know, it is not word which creates the impact. It is tone and it is your body language. Example, अगर आपको मम्मी डांटती है या पापा डांटते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है उनके डांटने में कौन सी चीज ज्यादा काम करती है? Body language. देखो, वर्ड्स कोई नहीं बोल रहा, अब वर्ड्स तो कोई नहीं कह रहा है ना। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँ और सिर्फ वर्ड्स यूज करूं, so please let me know, do you feel happy or not? Okay, for example, if I say you all are very good student, I really like your participation, I wish you all the best. Do you feel happy? Do you feel excited? Of course not. Why? Because it was only words and tone and body language was completely missing. Now I will add tone. Okay. Now I will add tone with words. You are very good students.
I really like your participation. All the best. A little bit effect is added in that. Add verb by effect. Okay. Now in body language, you all are very good students. I really like your participation. I wish you all the best. और इंक्रीज हुआ तो यही होता है जब घर में डांट पड़ती है. अगर मम्मी ने ऐसे डांटा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नालायक, कितनी देर से आ रहा, कितनी बार आवाज देनी पड़ेगी. आप पे कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा. या आप रात को लेट घर आते हो, ठीक है, या मोबाइल मिलते रहते हो और पापा अगर इस तरह से आपको डांटते हैं कि पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, मुझे तो चिंता हो रही है, तो मोबाइल छूटेगा आपसे? नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्ड्स है. लेकिन होता क्या, हमारे पेरेंट्स टोन यूज करते हैं, टोन, और मम्मी टोन यूज करती है ना. नालायक, जब देखो फोन 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 फोन, काम कौन करेगा? और तब आपके ऊपर उसका असर होता है. तो इसका मतलब आप पर जिस चीज ने असर किया वो वर्ड्स नहीं थे, वो क्या था? टोन. और कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना, मम्मी का और पापा का बॉडी लैंग्वेज होती है ना. कभी पापा ने ऐसे लिखते लिखते डांटा क्या आपको? नालायक, जब तक मुंह में देखते डालते. कभी मम्मी ने खाना पकाते पकाते डांटा आपको? नालायक, मोबाइल देखते बैठे रहते. हाथ का चमचा लेकर पलट कर डांटती मम्मी, ऐसा पलट कर, कितना मोबाइल देखेगा? और तब आपका मोबाइल छूटता है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? टोन एंड बॉडी लैंग्वेज. ओके, वर्ड आल्सो हैव वैल्यू. का वर्ड जीरो नहीं है, वर्ड जीरो नहीं है, ठीक है. 7% क्या है? वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. क्या आप किस तरह के वर्ड सेलेक्ट करोगे, इसलिए उसको 7% दिया, ठीक है. Now we'll go for the next. Now some common preparation. So in common preparation, first we'll talk about voice, sound. Okay. So in every competition, whether it is speech or debate competition, you need to take care of your pronunciation and your articulation. Okay. Pronunciation के जैसा उर्दू में कहते हैं कि तलफ्फुज़, ठीक है, और आर्टिकुलेशन अंदाज़े बयां. आपका अंदाज़े बयां कैसा होना चाहिए, ठीक है. ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. अब किसी का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है पर आर्टिकुलेशन नहीं है, सो दैट पर्सन कैन नॉट क्रिएट द इम्पैक्ट, ठीक है. तो प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है. अब ये होगा कैसे? सो रिमेंबर देयर आर 7 C's. Whenever you prepare for communication, you need to prepare 7 C's. Okay, ये 7 C आपके कम्युनिकेशन में होना चाहिए. What is first C? The first C is clarity. Whatever you speak, it should be clear. Your audience should listen it. Your audience should understand it. Okay. So the first C is clarity. Okay. The second one is correct. The information you are sharing with your audience, it should be correct. Okay. क्योंकि देखिए अगर आपके कंटेंट में कहीं भी कोई मिस्टेक होगी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो एक तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और दूसरा अगर ऑडियंस में से किसी ने थोड़ा भी ऐसा मुंह टेढ़ा किया तो फिर आपका पूरा मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है. So before delivering a speech, make sure that your content is correct. Okay, correct in terms of context, correct in terms of grammar also. ठीक है. This was the second C. The third C is complete. Completeness. Whatever you speak, you should complete the statement. There should be a proper beginning and proper ending. ठीक है. बीच में छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है. So completeness is the third C. Then the fourth C is concreteness. Concrete means solid.
Means you should be firm that what I am speaking is true. What I am speaking is very important. Concreteness. Okay, यानी loose talk नहीं करना है. Okay, because you know I observe some people, they speak, but they don't speak with conviction, and it seems that कि बोलने वाले को इस पे यकीन नहीं है. So when you speak something, you should be firm that what I am speaking is true. If you find any mistake, show me later. But at the time of speaking, I don't have any doubt about my information. Whatever I am speaking is the best to my knowledge. So this concreteness should be there. Okay? Then concise. The fifth C is concise. जितना short बना सको उसको short बनाने की कोशिश करो. Because small is beautiful. Small is beautiful. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग में दो पब्लिक स्पीकिंग हम देखते हैं. एक होता है नेताओं का भाषण, है ना, और एक होता है शायर का एक लाइन का शेर. होता है यानी नेता घंटों की भाषण दिया तो लोग वाह नहीं करते, और यहाँ पे शायर ने एक शेर बोला तो पूरी पब्लिक झूमती है. Why? Small and powerful. So the fifth C is make it concise, small, short, but complete. Short का मतलब ये नहीं कि हाफ सेंटेंस बोलोगे आप. Complete but concise. Okay. So for example, I'll share with you. Somewhere I was invited to speak, and I wanted to convey a message there. So I started with a share, and I said, वैसे तो हम बहुत कम बोलते हैं, वैसे तो हम बहुत कम बोलते हैं, मगर जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम बोलते हैं, मगर जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम बोलते हैं. यानी अब अंदाजा लगाओ कि कंसाइजनेस का क्या इम्पैक्ट है. और कभी भी ऑडियंस जो होती है ना आपकी, वो छोटे स्टेटमेंट से मैसेज लेती है. आप लंबा थोड़ा डेफिनेशन देते बैठे हो, उतनी देर में वो बोर हो गए, क्योंकि मैसेज लेने के लिए कंसंट्रेशन करना पड़ता है, और इतने लेंथी डेफिनेशन को कोई कंसंट्रेट नहीं करता. सो द फिफ्थ वन वाज कंसाइज. ओके, देन कंसीडरेशन. नाउ व्हाट इज कंसीडरेशन? आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, आइडेंटिफाई द लोकेशन, identify the type of program, identify your topic. Means you need to consider all these things. आपको ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस मेरे सामने बैठी है वो कंसिडर करना होगा. लोकेशन क्या है, कहाँ है, होटल में है, स्कूल में है, गार्डन में है, मार्केट, कहाँ बात कर रहे हो आप, आपको कंसिडर करना पड़ेगा. टॉपिक क्या है, ठीक है, टॉपिक क्या है, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ही सीरियस प्रोग्राम चल रहा है कि कोरोना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, ठीक है, और आप वहां शेर शायरी कर रहे हो और आप वहां जोक सुना रहे हो, इज इट सुटेबल? ऑफ कोर्स नॉट. सो व्हाट यू नीड टू डू, कंसीडर व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर. देखिए एक चीज अच्छे से बताता हूं मैं आपको, मेरे ध्यान में आई कि हम क्या करते हैं ना कि मैं इस चीज में बहुत एक्सपर्ट हूं और हर जगह वही चला रहा हूं, वो नहीं चलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को स्पीच देने की आदत ऐसी हो तो चिल्ला चिल्ला कर आप स्पीच देने की आदत, चिल्ला कर, यानी अगर 5-6 लोग भी बैठे हैं तो भी चिल्ला कर ही स्पीच दें. तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप कंसीडर नहीं कर रहे, आप कंसीडर नहीं कर रहे कि ये लोकेशन क्या है, स्पेस कितना है, और मुझे कितनी कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है, आप कंसीडरेशन नहीं कर रहे. ठीक है. तो यहाँ पे जो 6th पॉइंट है कंसीडरेशन, check the requirements. Okay. And the last one, courtesy. The 7th C of communication is courtesy. What do you mean by courtesy? The manners
and etiquettes of communication. Using golden words, using polite phrases in your conversation. यानी जब भी बात करो अपनी कॉन्वर्सेशन में कर्टेसी रखना चाहिए, ठीक है? सिंपल वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी. मेंटेन कर्टेसी, ओके? बिकॉज व्हाट हैपेंस, आपने को ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बहुत बड़े स्पीकर्स बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई डिस्टर्ब कर दे या माइक काम नहीं करता है या वो वीडियो शूटिंग वाला बार बार बीच में आ रहा है तो वो उसको डांट देते, उसकी बेचारे की इंसल्ट कर देते. और इधर ऑडियंस अच्छी बात कर रहे हो लेकिन उसको डांट दिया. सो व्हाट इज मिसिंग हियर? कर्टेसी. कर्टेसी मिसिंग. क्या अगर बहुत अच्छे स्पीकर हो तो आपको कर्टेसी मेंटेन करनी पड़ेगी. आपको उसको बोलना एक्सक्यूज मी, उसको डांटने की जरूरत नहीं, ठीक है? सो द 7C इज कर्टेसी, ओके? सो व्हाट आई मेंशन्ड हियर, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, concreteness, conciseness, consideration, again correctness and courtesy. These 7 C's you need to maintain in your communication, okay? Then avoid mumbling. Avoid mumbling, okay? यानी अगर स्पीच देते समय किसी वजह से आप मम्बलिंग कर रहे हो, मम्बलिंग क्या होता है कि आप कुछ भूल गए, ठीक है? या आपके स्ट्रेस की वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो फिर मम्बलिंग होता है, स्टैमरिंग होता है. उस समय क्या करना है? रुक जाना, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो सेंटेंस रिपीट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज गिविंग अ स्पीच ऑन एजुकेशन, ठीक है? अच्छे से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट किया, क्योंकि पहले के 4-5 पॉइंट सबको बहुत अच्छे से याद होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है अगला पॉइंट, तो फिर वहां मम्बलिंग होता है. जैसे आपने बहुत अच्छे से स्पीच स्टार्ट की, एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी, एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ अ नेशन, एजुकेशन इज, होता नहीं. डोंट डू दिस. अगर आप भूल गए हो तो डोंट से एनीथिंग, ठीक है? जस्ट लुक एट द ऑडियंस, take little breath, again restart, okay? and याद रखिए आपने क्या प्रिपेयर किया है ऑडियंस को नहीं पता है. ऑडियंस को पता होता है. मुझे बताओ किसी कंपटीशन में आपको बोला जा रहा है कि पहले पूरी स्पीच बताओ और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है? कहीं पर भी नहीं है. तो देखिए अगर आप स्पीच में कुछ भूल भी गए ना तो अपनी तरफ से कुछ तो डाल दो वहां. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीच दे रहा हूँ और मुझे ABCD बोलना था, ठीक है? तो मैंने A कहा, B कहा, C कहा और उसके बाद क्या आता है मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा? तो समझ में आ गया यहाँ तक मैंने क्या क्या कहा आपको? A B C. अब इतनी देर में D याद आ जाए, समझ रहे हो? यानी जहां आप अपना पॉइंट भूल गए वहां करना क्या है? वापस पीछे जाना है और ऑडियंस को सिर्फ ये समझाने की कोशिश करना है कि आई होप यू अंडरस्टूड, ओके, आई विल रिपीट व्हाट आई हैव कवर्ड सो फार. और उतनी देर में वो जो अगला पॉइंट है वो आपको याद आ जाए. रुकना नहीं है वहां, ठीक है? रुकना नहीं, ठीक है? तो मम्बलिंग नहीं करना है, स्टैमरिंग नहीं करना, ठीक है? देन वॉइस मॉड्यूलेशन. व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? अप एंड डाउन इन योर कॉन्वर्सेशन, ठीक है? एक टोन में बात नहीं करनी, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है? अब वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होगा कि जब भी आप अपनी स्पीच में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हो तो या तो वॉइस को रेज कर दो या थोड़ी स्लो कर दो, दोनों ही इंपैक्ट क्रिएट करता है. हो रहा है ना मैं जब कह रहा हूं इसे? हर बार जरूरी नहीं आपको चिल्लाकर ही बताना पड़ेगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट. सम टाइम व्हेन यू लोअर योर वॉइस इट इंडिकेट्स दिस इज इंपॉर्टेंट. जैसे हम अक्सर ऐसा करते हैं कि स्पीच देते समय आपको कोई स्टोरी बोलनी है. सो व्हाट वी डू, जैसे स्पीच देते, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वी ऑल नीड एजुकेशन. शैल आई टेल यू अ स्टोरी? अब क्या किया मैंने? अचानक टोन चेंज किया.
बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वॉइस में अप एंड डाउन आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें वॉल्यूम, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, ठीक है। और अगर माइक है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चिल्लाकर स्पीच देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी चिल्लाने का ट्रेंड कहां से आया, कहां से आया? हमारे पास अक्सर मस्जिदों में जो बयान, मैंने तो बचपन में बड़े चिल्ला चिल्ला कर स्पीचेस सुनी, यानी इंपॉर्टेंट बात बोलने के लिए, हक बात बोलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, और वो ट्रेंड चला आ रहा है। अभी मैं देखता हूँ कुछ स्कूल्स में बच्चे चिल्ला चिल्ला कर स्पीच देते, यानी गला यहाँ से फाड़ फाड़ कर स्पीच दे रहे, इतना इरिटेटिंग लगता है वो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले था मैं एक स्पीच कंपटीशन में, ऑलरेडी स्पीकर बहुत बड़े बड़े हैं, साउंड क्लियरिटी बहुत अच्छी, और हमको बिल्कुल स्पीकर के पास बिठाया और उस पर भी स्टूडेंट चिल्ला रहा है। सो चेक स्पीकर कैसा है, साउंड कितना है, कहां तक जा रहा है, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज ओके, डोंट शाउट, चिल्लाने की जरूरत है। अब जैसा अभी ये सेशन अगर मैं आपका ऐसा ले लूं कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नीड टू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन, वी आर ओनली पार्टिसिपेटिंग, वी आर नॉट लर्निंग अबाउट कम्युनिकेशन, कैसे होगा? आप बोले सर होगा नहीं। तो ऐसा ही होता है जब आप स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो और आप साउंड का जजमेंट नहीं देते हो और बस चिल्लाते जाते हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ, चिल्लाना कहां से आता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तब माइक स्पीकर नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तब माइक स्पीकर नहीं होता है, तो तब चिल्लाना ही पड़ता है। लेकिन जब कंपटीशन में आते हो वहां माइक स्पीकर है, तो आपको तो आदत है चिल्लाने की अब जोर जोर से, तो ऐसे नहीं करो, ठीक है। एक मॉड्यूलेशन में बात करने की कोशिश करो, जहां मेरा मन करेगा मैं हाई टोन में बात करूंगा, जहां मेरा मन करेगा मैं लो टोन में बात करूंगा, जितना कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद पिच ऑफ वॉइस, व्हाट डू यू मीन बाय पिच ऑफ वॉइस? द थिकनेस ऑफ योर साउंड, थिकनेस ऑफ योर साउंड, ठीक है। अब वैसे तो वो नेचुरल होता है, पिच ऑफ वॉइस नेचुरल होता है, किसी का थिक होता है, किसी का थिन होता है, ठीक है। और जिसका फ्लेक्सिबल होता है दैट पर्सन कैन यूज बोथ द पिच ऑफ वॉइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल थिक वॉइस क्या होती है, जैसे बराक ओबामा, बराक ओबामा अगर आपके कान में भी बात करेगा तो बहुत हेवीनेस के साथ आवाज आती है। जैसे बराक ओबामा, हाउ डज ही स्पीक? अमेरिका, वी आर वेरी प्राउड टू बी हियर, अनदर द अमेरिका सेंचुरी। वो कान में भी बात करेगा तो ऐसी आवाज आएगी। और सचिन तेंदुलकर अगर स्पीच को चिल्ला चिल्ला कर भी बात करेगा तो उसकी स्पीच थिन ही रहेगी। टू अपोजिट आई एम गिविंग यू, बराक ओबामा थिक पिच, सचिन तेंदुलकर थिन पिच। बराक ओबामा कितना ही धीरे बात करेगा ना उसकी थिन नहीं होने वाली, वो थिक ही है। और सचिन तेंदुलकर कितना भी चिल्ला ले उसकी थिक नहीं हो सकती। सचिन तेंदुलकर की कैसी पता है आपको? It was very fantastic match. We played very well, but you know that Australia, they bowled very well, and the pitches were very hard. That's why we could not win the match, but next time we'll try to win the match. This is thin pitch, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करो, ठीक है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। और ये खाली स्पीचेस के लिए काम नहीं है, इन जनरल भी आपकी पिच बड़ी मैटर करती है। जैसा किसी ने आपको बहुत प्यार से बुलाया, अरे सुनो जकी इधर आओ, आओ, तो उसको लगेगा यार ये टेंशन में दिख रहा है, जबकि जकी बहुत हैप्पी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो पिच उसको नहीं पता ना कि इसकी नॉर्मल पिच ऐसी है, लेकिन उसको क्या लगेगा कि यार ये तो बहुत ही रूड आदमी दिख रहा है। तो ट्राई टू मेक योर पिच फ्लेक्सिबल, ठीक है।
समझ में आया? जैसे घर में जो है ना, लो टोन लो पिच में बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रोफेशनली हाई टोन हाई पिच में बात कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? पिच प्रैक्टिस करो, कर सकते हो आप, ठीक है? पिच को, अपनी पिच को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करो, ठीक है? जैसा पिच का काम कब आता बताता हूँ। इन योर स्पीच व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, इन योर स्पीच व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है? द स्टोरी ऑफ लायन एंड द माउस, ठीक है? तो जब लायन की बात आएगी तो आपका पिच ठीक होना चाहिए, और जब माउस की बात आएगी तो ठीक होना चाहिए। अब आप दोनों भी एक ही पिच में बात कर रहे हो। There was a lion. He was sleeping, and the mouse came. The mouse was jumping on the lion. The lion woke up and he caught the mouse and he said, "I will kill you." And the mouse said, "Oh lion." अब देखो mouse भी वही टोन में बात कर रहा है। So it doesn't look good, you know. And it's just psychologically we imagine that lion and mouse they are same of size. तो जब माउस आएगा तो टोन आपकी पिच आपकी थिन होनी चाहिए। जब लॉयन बोल रहा है तो आई विल किल यू, लॉयन प्लीज डोंट किल मी, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। और तभी इमेजिन होगा कि यस माउस द स्मॉल क्रिएचर एंड लॉयन इज अ बिग क्रिएचर, ठीक है? यानी व्हेन यू डिलीवर अ स्पीच एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनवाइटिंग योर ऑडियंस टू विजुअलाइज दैट। When I said lion, can you imagine the lion? When I said there was a mouse, can you imagine the mouse? दोनों एक ही साइज के, लेकिन जब पिच यूज करोगे ना दोनों एक साइज के हो जाए। There was a lion, there was a mouse. आप दोनों एक साइज के, आप कौन किससे डरेगा? So this is important. Pitch, pauses. टेक पॉजेस इंटेंशनली। आप खुद डिसाइड करो मुझे कहां पॉज करना है। अगर आप खुद डिसाइड नहीं करोगे तो फिर आपका फ्रस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि आप कहां पॉज करो। होता है तो शुरू में आपने बहुत एक्साइटमेंट में स्पीच शुरू कर दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। अब शुरू में बहुत जबरदस्त बम्बार्डिंग किया आपने और उसके बाद में आप भूल गए, तो ऐसे मत करो। यू डिसाइड वेयर शुड आई टेक पॉज, इंटेंशनली पॉज लो। और पॉज लेने का तरीका क्या होता है? आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। जैसे आप स्पीच दे रहे हो, यू नो द सोशल मीडिया इट्स अ प्लेटफॉर्म, यू कैन यूज इट टू अवेयर द पीपल, टू एजुकेट द पीपल, टू स्प्रेड द मैसेज। अब आप भूल गए, अब क्या करना है? डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? आपने क्या किया? आपने ऑडियंस को इंगेज कर दिया। अब किसी को भी डाउट नहीं होगा कि आप भूल गए। सबको ये लगेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू रिकॉल योर पॉइंट। दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल पॉज। आप खुद डिसाइड करो मुझे पॉज कब लेना है। सो दिस वाज अबाउट पॉज मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट प्लीज, बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज विल स्टार्ट विथ आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट, व्हाट टाइप ऑफ आई कॉन्टैक्ट वी शुड हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक आई कॉन्टैक्ट। देखो पहले तो आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ठीक है? आसमान की तरफ देखकर स्पीच नहीं देनी, ठीक है? या नीचे देखकर स्पीच नहीं देनी, ठीक है? मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ देखकर बात करो, ठीक है? और जहां तक हो सके सामने बैठने वालों की तरफ देखकर बात करो, बिकॉज दे आर सिंसियर पीपल, दे आर वेरी सिंसियर पीपल एंड दे आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, ठीक है? ज्यादा पीछे देखने की कोशिश नहीं करो, ठीक है? क्योंकि जो लेस इंटरेस्टेड हो तो ऑलरेडी वो पीछे बैठे होते, ठीक है? और आप पीछे वालों को देखकर अगर बात करोगे तो वो वहां से डिस्टर्बेंस करते हैं, ठीक है? तो जहां तक हो सके आई कॉन्टैक्ट, फ्रंट की जो लाइंस होती है वहां आई कॉन्टैक्ट मैच करने की बात करो, थोड़ा बहुत पीछे भी नजर डाल देना, ठीक है?
अब अगर आपको बहुत ही आई कांटेक्ट से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को आई कांटेक्ट मैच करने से डर लगता है, ठीक है, तो फिर करना क्या? इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, दो लोगों के बीच में देखना। जैसे फॉर एग्जांपल these two students are sitting, okay, and I look at that chair. So education is very important. We all need to create the awareness about education. यानी मैं किसी से भी आई कॉन्टैक्ट मैच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबको क्या लग रहा है? आई एम लुकिंग एट दिस स्टूडेंट्स। इनको लग रहा है मैं इनको देख रहा हूँ, इनको लग रहा है मैं इनको देख रहा हूँ, आगे वालों को लग रहा है मैं पीछे वालों को देख रहा हूँ, पीछे वालों को लग रहा हूँ मैं आगे वाले को देख रहा हूँ। मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, मेरा आई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं है, मैं वो चेयर के साथ आई कांटेक्ट मैच कर रहा हूँ। ये कब? जब आपको वाकई में बहुत डर लगता हो आई कांटेक्ट से, ठीक है, लेकिन इससे पता नहीं चलेगा कि आप डर रहे हो। क्यों? तो जो आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप आई कांटेक्ट मैच कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आई कांटेक्ट मैच करने का मतलब ये है कि मेक एंड ब्रेक। आई कांटेक्ट मैच करना है, फिर इधर देखना है, इधर देखना, फिर इधर देखना, फिर उधर देखना, ऐसे मींस एक ही इंसान को घूरते नहीं बैठे, है ना। यानी होता ऐसा है कि ऑडियंस में अगर कोई हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, जैसे आप स्पीच दे रहे हो, है ना, आप कह रहे हो कि यू नो इन इंडिया देयर आर मेनी पीपल, ऑल द पीपल दे आर वेरी गुड। अब एक इंसान जो है ना ऑडियंस में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, ठीक है, वो ऐसा कर रहा है यार, और आप उसी को देखे जा रहे हो, अब बेचारा वो डर जाएगा। सो दिस इज नॉट कॉल्ड आई कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेयरिंग, घूरना नहीं, ठीक है। अब ऐसे देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो आप, सो इसको कहते हैं घूरना, ठीक है। सो मेक एंड ब्रेक, मेक एंड ब्रेक, ठीक है। अब ब्लिंक भी करो, ब्लिंक भी कर सकते हो, ठीक है, एकदम ऐसे रख के बात नहीं करनी, ठीक है। एंड आई मूवमेंट, हर बार नेक मूव करने की जरूरत नहीं है, समटाइम कर सकते। इतना कंट्रोल होना चाहिए कि यू डिसाइड वेयर आई शुड लुक एट, ठीक है, मुझे कहां देखना है, आई विल डिसाइड। हमारा क्या होता है पता है, इधर के लोग रिस्पांस दे रहे हैं ना, तो पूरी स्पीच इधर ही खत्म हो जाती है, उधर देखते भी नहीं है ना, नहीं वो लोग बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं देखना उधर, पूरा इधर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जब फिर अक्सर ये होता है कि बॉयज और गर्ल्स की लाइन अलग बैठाते हैं, है ना, यानी एक लाइन गर्ल्स की होती है, एक लाइन बॉयज की, ठीक है। अब दोनों ही पार्टिसिपेंट को फ्रीडम है कि कहीं भी जाके खड़े हो जाओ और स्पीच शुरू कर दो। तो कुछ गर्ल्स क्या करती है, वो गर्ल्स की लाइन की तरफ खड़े हो जाती है और पूरी स्पीच गर्ल्स की सुना देती है, और कुछ बॉयज क्या करते हैं, बॉयज की लाइन की तरफ खड़े होते हैं और पूरी स्पीच बॉयज की, इधर देखते भी नहीं। डोंट डू दिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कम स्टैंड इन द सेंटर एंड लुक एट एवरीवन, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, फिर इधर देखो, इधर देखो। अगर यहाँ कोई बैठा है, यहाँ पे पैनल बैठा है, उधर देखकर बात करो, ठीक है। लेकिन अब इधर आई मूवमेंट नहीं होगा, पूरा बॉडी मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे खड़े रहकर बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जजेस जनरली ऐसे ही बैठे होते हैं। सो व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच, you should move your body, like you are talking about sports in India. So there are many sports in India, and we have cricket. Most of the people like cricket in India, but I must tell you that we need to get involved in other sports also. Am I right, sir? Like this, ठीक है, ऐसे नहीं करना। Am I right, sir? Okay. So eye contact, eye movement we need to maintain. उसके बाद gesture. This is very important. Gesture, what is gesture? Moving your hands, ठीक है। So moving your hands, it has limitations. यानी आपके hand movement की एक limitation होगी, कितनी? You will move your hand from your elbow to your palm. Elbow से palm, कितना hand move होना चाहिए, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी है? यानी अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो यहाँ से ये इतना, ये हैंड इतना मूव होगा और ये हैंड इतना मूव होगा, दैट्स, ठीक है। ये इसके एरिया में नहीं आएगा और ये इसके एरिया में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि द कार वाज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट वाज गोइंग दिस वे। हाउ डू यू? द कार केम फ्रॉम दिस वे एंड वेंट टू दिस वे।
यूज बोथ द हैंड्स, ठीक है, ऐसे नहीं करना है. द कार केम फ्रॉम दिस वे एंड वेंट टू दिस साइड, इट लुक्स वेरी बैड. आपको दो हाथ क्यों दिए? आने वाले का ये इशारा दिखाओ, जाने वाले का ये इशारा, ठीक है. और अगर ये करते हो तो और भी अच्छा है. द कार केम फ्रॉम दिस वे, द कार वेंट टू दिस वे. ये बॉडी मूवमेंट देख रहे हो? He came from this side and he moved to this way. ये आपका लेग मूवमेंट भी होना चाहिए उसके साथ, ठीक है. तो हैंड जेस्चर कितना होगा? एल्बो से पाम, ठीक है. अच्छा, लेकिन ये फेस के सामने नहीं लाना है, फेस के सामने नहीं लाना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू डिलीवरिंग अ स्पीच एंड यू वांट टू शो द फिगर्स. You know, I went to a village. I met 5 people. 5. ऑडियंस भी जाके ऐसा देखेगी, है क्या गया आप? तो जब आप हैंड जेस्चर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट इट शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ योर फेस, साइड में. आई मेट 5 पीपल, और उसकी रेंज है इतना, मैंने कहा कि नेक से नीचे. आई मेट 5 पीपल, ऐसे आई मेट 5 पीपल, ठीक है. और ऐसा भी नहीं करना है आई मेट 5. दिख रहा है किसी को? There were 5 people, 5. अब लोग ऐसा देखें. So this is the right position. I met 5 people, ठीक है. This, अच्छा, hand position भी सही होनी चाहिए. जैसे आप कह रहे हो कि you know I have only 2 friends. I have only 2 friends. तो 2 ऐसा होना चाहिए, तो सबके लिए 2 है. अगर आप ऐसा करते हो I have 2 friends, कितने? 1 दिख रहा है, ठीक है. So it should be like this. I have 2 friends, and the position should be right. This is the right sign of 2. Okay. Some people, I have 2 friends. Some, I have 2 friends. Or some, I have 2 friends. I saw this. Some students, they said, I have 2 friends. Don't do like this. And there are some who say, I have 2 friends too. I have 2 friends. I have 2 friends too. And I have 2 friends. So all these signs are wrong. Okay? The right sign is in a very gentle manner. Raise your hand till your shoulder only. I have 2 friends. Yes. Okay. And while showing your gestures, don't hold anything in your hand. Okay. For example, I have 2 friends. I have 2 friends too. क्या लग रहा है? Don't do like this. ठीक है. या फिर I have 2 friends. Where are your hands? Show your hand. Say simply, I have. तो बोलने की जरूरत है. You know how many friends you have? Oh, that's good. But I have only. गया message. So hand gesture plays very important. ठीक है. But the important thing is that your words and your sign should match with each other. ठीक है. Example, I have 2 friends. 2. तो फिर अब ऑडियंस ये यार ये दिखा चाह रहा है, बोल दो रहा है, सही क्या है? ठीक है. So make sure when you show the gestures, your gestures should match with your words. Your gesture should match with your expressions. जैसे for example आपको किसी को आप कह रहे हो, I saw that picture. It was very beautiful. Was it beautiful? Was it beautiful? The sign is saying it was beautiful, but the expression, nahin. And if you are saying that it was very dangerous, हंस रहे हो और आप बोले it was dangerous. So the 3 things should match each other. Okay. What are these 3 things? Your words, your gesture, and your expressions. Okay. Just for example, yesterday I went to zoo and I saw
a big elephant, a very big elephant. Does it look like big? यानी आप अंदाजा लगाओ, मैंने तो बोल दिया ना big, फिर आप क्यों हंस रहे हो? Because the gesture is showing that elephant, it was not elephant, it was ant. So, elephant, when you say elephant, it was a big elephant. It was a big elephant. When you say something small, then you can use. You know, my grandfather, he had a very small pen. He had a very small pen. He had a very small pen. Okay? So match your words, your gesture and your facial expressions. Okay? Again, make sure that nothing is on your hand. Okay? देखिए gesture में होता क्या है ना कि आप वहाँ बैठे बैठे कुछ तो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, हाथ पे लिख देते हो उसको, है ना, ये पॉइंट वो पॉइंट इधर ये। अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पहुंच, ठीक है, और आप कह रहे हो एम आई ऑडिबल, तो ऑडियंस आपके मैसेज की तरफ ध्यान नहीं दे रही, वो देख रही तुमने लिखा क्या है ना, फिर बाजू वाले बोलते हैं देख देख क्या है, यानी आप अपना प्रोग्राम खुद खराब कर रहे हो। ठीक है, सो मेक श्योर दैट नथिंग इज ऑन योर पाम, हाथों पे कुछ भी ना हो, ना लिखा हो, ना कोई दाग धब्बा हो, और मेहंदी तो बिल्कुल भी ना हो। जैसे स्पेशली इफ अ गर्ल इज डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है, और वो कहती है कि आई एम हियर फॉर यू ऑल। अब जो मेहंदी लवर्स होते हैं ना, आपस में डिस्कशन शुरू करते हैं, देख उसने वो चांद वाली निकाली, तो दूसरी बोलती है मेरे सूरज दिख रहा है। ठीक है, so whenever you use your gesture, make sure that your hands are clean. Okay? Your hands are clean. Then posture, how to stand. Okay, so as I said, if there is no stage, if you have a space like this, so come in the middle of the audience, stand in the middle of the audience. Okay, अगर पोडियम है तो फिर आपको पोडियम के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसको जबरदस्ती उठा के लाना है। मेरे सर ने बोला मिडल में होना चाहिए, रुको मैं उठाता हूँ। ठीक है, सो स्पीच कंपटीशन में जहाँ जो चीज रखी है आपको वहीं से देना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पोडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, स्टेज है, सो यू शुड स्टैंड इन द सेंटर। ठीक है, अच्छा सेंटर स्टेज चढ़ना कैसे? Very normal. Come, step up on the stage from a corner. ठीक है, बीच में से नहीं चढ़ना, ठीक है, साइड से चढ़ना है, and then come in the center. Then come in the center. ठीक है. Now how to stand? If you have PPT like this, then don't stand in the center. ठीक है, you should take your stand a little away from the screen so that the screen should not be disturbed. ठीक है, अब खड़े कैसे रहेगा? देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द वे यू स्टैंड एक्चुअली इट जनरेट्स एनर्जी। आप खड़े कैसे रहते हो उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बोला, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। कितनी देर तक खड़ा रहेगा ऐसे? फिर थक जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। This is called power position. Stand like this. Stand like this. ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाथ रख भी दो ऐसे, सच में रखो, थोड़ा सा ऐसा मूव भी करो ऐसे। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना होना चाहिए? The distance should be according to your shoulder. Whenever you go on stage and you deliver the speech, you should stand very firmly. Okay, and the distance between your feet should be according to your shoulder. ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं वो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, कोई कह रहा है इतना डिस्टेंस होना चाहिए, कोई कह रहा है इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आप सबकी बॉडी एक जैसी है, सबकी एक जैसी नहीं है, तो अगर आप कंसीडर करते हैं कि सबने कहा कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, अब अगर वो थिन है तो ठीक है, और वो बहुत फैट है
तब उसको बड़ा अनकंफर्टेबल होगा। जैसे वो ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया, तो वो ऐसे डुल के थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है, और पैर अटैच करके तो खड़े ही नहीं होना है, जिसको हम कहते हैं ना सावधान की पोजीशन। स्पीच देते समय कभी भी सावधान में नहीं खड़े होना है। आपको पता है सावधान और विश्राम क्यों होता है? पता है? We call it सावधान and we call it विश्राम। Why सावधान and विश्राम? सावधान is to keep quiet। सावधान बात करने के लिए नहीं होता है, बात करने के लिए क्या करना पड़ता है? विश्राम। तो स्पीच अगर आप दे रहे हो और आप सावधान में खड़े हो ऐसे, ठीक है, आप कितनी देर तक खड़ा रख दे सकते हैं? स्पीच नहीं दे सकते आप। और अगर आप जिद कर रहे हो कि मुझे ऐसे खड़ा होना है, मेरे पापा ने कहा बेटा सावधान में खड़े रहो, तो अब क्या होता है? अब आपकी स्पीच शुरू होगी और थोड़ी देर के बाद आ जाए झूमने लगो, ऐसा लगेगा कुतुब मीनार में खड़ा है, ठीक है, फिर आप गिर रहे हो, फिर आप नहीं वापस सावधान, फिर गिर रहे हो, फिर वापस सावधान। सो डोंट क्लोज योर फीट, ठीक है। अब स्प्रेड करना है तो कितना करना है? अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर। इतना करना है कि आप आसानी से मूव कर सको, ऐसे कर सको, ऐसे कर सको, ऐसे कर सको, वापस। अब अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया, अब सर ने कहा था स्पेस रखना है, अब इतना स्ट्रेच किया, नाउ यू आर ब्लॉक्ड, अब आप ब्लॉक हो गए, ठीक है, अब आप मूव नहीं हो सकते, ठीक है। यानी स्टैंडिंग पोजीशन इसलिए होती है कि ये जो आपका लेग्स का मूवमेंट है, आप ऐसा कर सको, ऐसा कर सको, ठीक है, जरूरत पड़ी तो पीछे भी देख सको ऐसे। और ये कब होगा? जब सफिशिएंट डिस्टेंस होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी, ठीक है। और फीट स्ट्रेट होने चाहिए आपके ऐसे, ठीक है। अब कुछ गड़बड़ में कुछ स्टूडेंट ऐसे खड़े हो जाते हैं स्पीच में, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होता है ऐसे आगे पीछे, ठीक है। डोंट डू दिस, स्टैंड लाइक दिस, ओके, इन दिस पोजीशन, एंड व्हाइल स्पीकिंग put your load one by one on different legs. This is for example the way I am standing here. Now I am on my right. Now I am on my left. आपको पता नहीं चलेगा. I know only. Sometime right and sometime left and then sometime straight. अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको बैलेंस करना है, नहीं चेक करो बराबर, नहीं लेफ्ट पे ज्यादा जा रहा है, थोड़ा इधर, ये नहीं करना, ठीक है। बी कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल यही है कि मूव करते रहो। देख रहे हो व्हाट इज दिस? यू आर शिफ्टिंग योर लोड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके। बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगेन स्टैंडिंग जहां आप खड़े रहते हो ना, मेक श्योर दैट ऑडियंस कैन सी यू, ऑडियंस आपको देख सकते, ठीक है। ऐसी जगह नहीं खड़ा होना कि ऑडियंस को दिख नहीं रहा है, जैसा ये कैमरा आ गया आप उसके सामने खड़े हो, ठीक है। मेक श्योर दैट ऑडियंस कैन लुक एट, ठीक है। तो ये है पोस्चर, ठीक है। द पोस्चर शुड बी कंफर्टेबल एंड द पोस्चर शुड बी पावरफुल, ठीक है। तो जाते सबसे पहले तो ऐसे खड़े होना है, ऐसे हाथ रखना है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, ओके, एंड थोड़ा सा स्ट्रेच किया ऐसे एंड देन स्टार्ट, ओके। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे स्पीच चलती रहती है हमको पता चल जाता है 4 हो गए, है ना, अब 3 बचे, 5 हो गए, 2 बचे, 6 हो गए, अब 1 ही बचा, 7 हो गए, अगला नंबर मेरा ही होता है ना। तो इस दौरान होता क्या है? फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है, एंजाइटी जनरेट होती है, एंजाइटी, ठीक है। तो स्टेज पे जाने से पहले रिलीज योर एंजाइटी एंड दिस इज द वे टू रिलीज योर एंजाइटी। चाहे अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जहां पर आप बैठे हो वहां पर खड़े होकर भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते, जरूरी नहीं स्टेज पर आकर करो। स्टेज पर आकर तो सबको समझ में आएगा, बेटर अपनी पोजीशन पर जहां पर भी आप बैठे हो, एंड व्हेन इट इज योर टर्न, so before coming to stretch, release your anxiety, okay. Then facial expressions, in body language facial expressions play very important role, okay. And as I told you, your facial expression should match with your gesture and your words, okay. Gesture and words
should match with your facial expression. ठीक है? If you are telling something very serious, look serious. Look serious. And when you are saying something funny, have a smile on your face. उल्टा नहीं करना. ठीक है? You are talking about corona deaths. You know, कोरोना में ना 1 लाख लोग मर गए थे. The message is not matching with the expression. ठीक है? यानी ऐसा लग रहा है कि ये रोज कितने लोग मरते दिखता है. इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है? और आप जोक बोल रहे हो और उसमें सीरियस हो गया. You know, there was Santa and Panta. Joke है. Have a smile on your face. Okay? So facial expression plays very important. ठीक है? And look relaxed. देखिए, face is the display. Your face is display. What do you feel inside? Your face indicates. आप अंदर कैसे फील कर रहे हो कौन बताता है? फेस बताता है. ठीक है? So make sure that your facial expression is relaxed, excited and confident. अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करो. ठीक है? बिकॉज होता ही है कि आप डरे हुए हो. ठीक है? यू आर स्कैर्ड एंड व्हेन समवन आस्क्स यू, आर यू स्कैर्ड? नो नो नो. यानी आपने और बताया यस आई एम स्कैर्ड. ओनली योर वर्ड्स आर सेइंग दैट आई एम नॉट स्कैर्ड, बट द एक्सप्रेशन इज सेइंग यस यू आर स्कैर्ड. Okay, so if you're not scared, show it through your expression. If you're serious, show it through your expression. If you're excited, show it through your expressions. ठीक है? So expressions play very important. Okay? Then neck movement होना चाहिए. ठीक है? जैसे मैंने कहा कि रोबोट बन के स्पीच नहीं देंगे. रोबोट नहीं बनना है. ठीक है? Move your neck. Like for example, we all play the games. Do we play the games? Yes, we play the games. No, we don't play the games. यानी yes ऐसे होता है और no ऐसे नहीं, ऐसे होता है. अब इसका उल्टा नहीं करना. Some people they said, have you not understood? Yes, I understood. No. है opposite हो रहा है. No is like this and yes is this. ठीक है? So match your neck movement with your message. ठीक है? और neck movement होनी चाहिए, you know, side by side and lid up and down. Up and down भी होना चाहिए. ठीक है? Side by side and up and down. ठीक है? So neck movement we should maintain. Next please. Now the stage presence. और स्टेज प्रेजेंस कैसा होना चाहिए? Dress appropriately. First of all, when you appear on the stage, your dress should match with the occasion. जैसा प्रोग्राम है उस हिसाब से आपका ड्रेस कोड होना चाहिए. ठीक है? यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल कंपटीशन है तो ड्रेस क्या होगा? या तो स्कूल यूनिफॉर्म होगा या बहुत फॉर्मल ड्रेस होगा. ठीक है? बिकॉज आई सॉ सम स्टूडेंट स्पीच कंपटीशन में वो भैया की शादी में जो ड्रेस लिया था ना चमकी वाला, वो पहन कर आते हैं. अब लोगों का ध्यान ही नहीं उसकी स्पीच की तरफ, ड्रेस की तरफ ध्यान कितने का होगा. और ये चमकी में क्या चांदी है या सोना है ना. सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस. ओके? For example, I am here as a trainer. I am here to deliver a training program. Therefore, I am in this dress code. ठीक है? मैं अगर पठानी में आया हुआ एकदम मस्त पठानी, उसके ऊपर शाल है ना, उसके ऊपर बड़ी वो अफगानी टोपी, एक हाथ में ताबीज, तो आप बोलते थे क्या बयान होने वाला है. ऐसे होगा ना. सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम. जैसा प्रोग्राम है वैसा ड्रेस होना चाहिए. ठीक है? हाँ, अगर मस्जिद में बयान दे रहे हो तो फिर ठीक है, कुर्ता पैजामा पठानी चलेगा, वहाँ पे टाई वाई करके बच जाओ.
हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं हुई अभी, है ना? सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं हुई ना हमारी कि आपको सूट और टाई पहन के मस्जिद में आने देंगे। तो जहाँ जैसा प्रोग्राम वैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ड्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपका ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, जैसे आपने बहुत टाइट पहन कर आ गए और आप स्पीच दे रहे हो और एक हाथ पूरा लगाए, या किसी की पैंट बड़ी है और वो लगा उसको ऊपर उठाने में, यानी वो यहाँ जेस्चर दे रहा है और एक हाथ इधर लगा है। डोंट डू दिस, ओके। देयरफॉर द ड्रेस शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है। इफ यू वेयर स्कार्फ वेयर इट प्रॉपर्ली, ओके, पिन इट प्रॉपर्ली, कि वो निकले नहीं, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि निकलेगा नहीं, ठीक है। तो होता है ना अक्सर गर्ल्स का, मैंने देखा जो स्कार्फ पहनते हैं वो बार बार स्पीच देते थे। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपने फ्रेंड को भी पूछती है, ठीक है, वो भी वहां से बोलती। सो मेक श्योर दैट योर ड्रेस इज प्रॉपर एंड यू आर श्योर अबाउट इट, ठीक है। चलिए, सो ड्रेस इंपॉर्टेंट ऑन स्टेज। Practice mindfulness when you appear on the stage. Practice mindfulness. What is mindfulness? Be in the present. What is mindfulness? Be in the present. कल क्या हुआ, मैंने कितना प्रिपेयर किया, ये सब वो आप सोचने की जरूरत नहीं। रिजल्ट क्या होगा सोचने की जरूरत नहीं। What is now here is involved. So be in present, okay? तो ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा गेस करते नहीं बैठना है, ये बहुत होशियार दिख रहा, अरे वो तो बहुत टैलेंटेड दिख रही है ना, और ये तो वो स्कूल से है, ये सब नहीं करना, ठीक है। You all are same, you all are same, and you all have equal opportunity to prove yourself. तो यहाँ गेस करते नहीं बैठना है, यार कि इनका यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये बड़े स्कूल से होंगे, हमारा तो ऐसा है, हम छोटे स्कूल से। Don't do this. What is right now is important. Do that. Okay. Then visualize success. When you appear on the stage, स्टेज पे आने से पहले और स्टेज पर आने के बाद अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। That I have prepared enough, and if I perform according to my preparation, I will win. I will take this trophy. Visualize success. हमारा उल्टा होता है, we visualize defeat. मेरा नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, वो देखो, इसको देखो, पिछली बार नहीं हुआ था ना, इस बार भी नहीं हुआ। मीन्स हम हमारी हार को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज सक्सेस, जितना प्रिपेयर किया है अगर उतना परफॉर्म किया, आई विल बी द विनर, ठीक है। देन हैंडल द माइक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू हैंडल द माइक। अब माइक के कई किस्में, एक होता है ऐसे वायर वाला माइक, ठीक है, एक होता है कॉलर माइक, एक होता है हेडसेट, ठीक है, और एक होता है स्टैंड पे लगा हुआ माइक, और एक होता है वायरलेस। अब ये सारे माइक को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो माइक इतना हैवी नहीं है कि उसको दो हाथ से पकड़ना है। इतना हैवी है कोई है जिसको माइक एक हाथ से समझता है? इट रिक्वायर्स ओनली वन हैंड, ठीक है। तो माइक को हैंडल कैसे करें? सबसे पहले when you go on stage, when you go behind the podium, ठीक है, so don't do anything yourself. आप गेस्ट हो, आपको वहाँ स्पीच देने के लिए बुलाया है, तो आप मैकेनिक बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। आप ही चेक कर रहे हो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर बड़े वो बटन दबा, सर वो देखो, वो होगा, ये होगा, सर ये वायर छोटा लग रहा है मुझे। डोंट डू एनीथिंग। वहाँ ऑर्गेनाइजर के टीम मेंबर्स होते हैं, उनको बोलना चाहिए कि सर दिस सर मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट ज़्यादा है, सर आई डोंट नीड दिस पोडियम, कैन आई स्टे देयर। खुद से मत हटाओ उसको, ठीक है। आप लगेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए सर, मैं हटा दूँ क्या? यू आर अ गेस्ट,
बिहेव लाइक अ गेस्ट, ठीक है। तो माइक को हैंडल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर वो स्टैंड है, ठीक है, तो स्टैंड की पोजीशन आपको डिसाइड नहीं करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्पीकर गया, उसकी हाइट ज़्यादा था तो माइक यहाँ सेट है, ठीक है। आपकी हाइट कम है, अब आपको माइक यहाँ चाहिए, तो क्या करें? क्या करें? सम स्टूडेंट व्हाट आई ऑब्जर्व ऐसे ही बात कर लेते हैं, उनको लगता है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, तो बेचारा वो ऐसे ही बात कर लेता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर ऑडियंस भी उसको देखकर हंस रही है। सो व्हाट यू शुड डू, आपको ऐसा नहीं करना है माइक, वहां जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको बोलना चाहिए सर कैन यू प्लीज एडजस्ट द माइक, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो जो हैंडल होता है वो बहुत खतरनाक होता है, कई सालों से उसका हाथ में लगाया हुआ होता है, ठीक है, और आप उसको कर रहे हो कोशिश, हाथ से नहीं हो रहा है, पैर से कर रहे हो, है ना, और वो चक्कर में गिर रहा है, आप भी गिर रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, तो जो एनर्जी आपने स्पीच के लिए तैयार करके लाई थी वो कौन खा गया? वो स्टैंड खा गया पूरी की पूरी। अब किसी तरह से वो स्टैंड हुआ, अब आप स्पीच देना शुरू कर रहे हो, आपका पूरा जो टेम्पो था, जो आपका पूरी एनर्जी थी, वो कहाँ लगा दिया आपने? माइक। डोंट डू, इट इज नॉट योर जॉब टू एडजस्ट द माइक, आस्क द ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। उसके बाद अब माइक एडजस्ट कितने लेवल पे करेंगे? ये जो माइक होता है ना, बिलो द नोज, ये लेवल पे माइक होना चाहिए, ठीक है, ये लेवल पे माइक होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप माइक यहां से नहीं बात करते हो, यहां से बात करते हो, ठीक है। और कभी भी माइक जो है ये माउथ के नीचे होता है, क्योंकि द फ्लो ऑफ एयर गोज डाउन, ऊपर नहीं जाता है फ्लो, ठीक है। तो बात स्पीच देते समय माइक ऐसे रखना है, आपका फेस क्लियरली दिखाई देना चाहिए, दिस वे, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे लगते हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इतना लग रहा है आप गन लगा के निशाना बना रहे हैं किसी को। डोंट डू दिस। और ऐसा रखेंगे तो हाथ धोए, कितनी देर रखेंगे ऐसा हाथ, फिर आपका हाथ उठ रहा है, फिर आप ये हाथ में, दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। और उसके अभी रिसेंट में तो फिर कुछ सिंगर तो ऐसे गाने गाते हैं, तो स्पीकर पे ऐसे स्पीच दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द जेंटल, ठीक है। द राइट पोजीशन इज दिस इज द राइट वे टू हैंडल योर माइक, ठीक है। अगेन अगर कॉलम माइक है तो पहले चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि कुछ माइक की रेंज नहीं होती, ठीक है, आपने यहाँ लगा दिया और वो वहां तक वॉइस ही नहीं जा रही, फिर आप वहां जा जाकर बोल रहे हो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। So check it whether it is sufficiently receiving the voice or not, ठीक है। हेडसेट वाला अगर है तो हेडसेट के माइक को क्या करना है? चेक करना है वो सही से बैकवर्ड है, ठीक है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होती है, वो यहाँ तक आता है और यहाँ होना चाहिए माइक का, उसको यहाँ ला दिया आप, ठीक है, या उसको ऊपर चढ़ा दिया आप, ठीक है। सो अगर वो हेडसेट है तो वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगेन हाउ टू चेक द माइक, अब माइक चेक कैसे करेंगे? फूकना नहीं है उसके अंदर, है ना। हाउ डू यू चेक? सम पीपल बंद है, ठीक है। होता क्या है जब आप माइक में फूकते हो ना, कैसे आवाज आती है? ऐसा लग रहा है अभी अजान होगी, ऐसे होता है, अजान ऐसी होती है। तो माइक ऐसे चेक नहीं करना है, डोंट डू लाइक दिस। माइक चेक करने का तरीका जो है ना, ऐसे दो बार, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में आया, आवाज आ रही है, ठीक है, दिस वे, दिस इज द वे, ठीक है। एक और टेक्निक होती है, जैसे हेलो 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 1 2 3 हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है ऑर्केस्ट्रा शुरू होगा। दिस इज आल्सो द रॉन्ग वे, ये आपका काम नहीं है। वो जो टेक्निकल टीम होती है वो लोग ऐसे चेक करेंगे, वो लोग चेक करते हैं कि वो उनकी टेक्निक है, वो बीट्स चेक करते हैं, वो ट्रबल है ना, वो बास चेक करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो लोग हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो। आप स्पीकर हो, पार्टिसिपेंट हो, आप ऐसे नहीं करोगे,
ठीक है? या तो आप स्टेज पर गए और आप वहां पर जाकर माइक चेक करो, हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, ऑडियंस बोलेगी इसका टॉपिक क्या है, ठीक है? सो डोंट चेक माइक इन दिस वे, द राइट वे इज ओनली हिट द माइक स्लोली। समझ में आया? आवाज आ रही, अब इतनी जोर से भी नहीं है, मारा आपको गिर गया हो, अब माइक टूट गया, ठीक है? जेंटल दिस वे, ठीक है? सो दिस इज द वे टू हैंडल द माइक। एंड इफ द माइक इज विद केबल, ये केबल के साथ अगर माइक है, ठीक है, ये तो पूरी सोसाइटी को सिखाना पड़ेगा कि माइक सिर्फ माइक पकड़ना होता है, केबल पकड़ना नहीं होता है। मेरे कई माइक खराब कर दिए लोगों ने ऐसा पकड़ पकड़। यस, क्या ऐसा किसने बोला माइक ऐसे पकड़ना है? इससे केबल खराब होता है, ठीक है? तो दिस इज नॉट द वे टू हैंडल। ये ऐसे पकड़ देगा ना आपने, अक्सर लोग ऐसे माइक पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ने से ये केबल खराब हो जाता है, ठीक है? सिर्फ माइक पकड़ना है, केबल नहीं पकड़ना है, ठीक है? अच्छा, अब केबल के साथ खेलना भी नहीं है, जैसा होता है कुछ लोग, है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है उनको, तो स्पीच इधर स्पीच चल रही है और इधर ये चल रहा है। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आपको पता चला हाथ से है ना? या फिर कभी अगर पैर फंस जाता, आप इतने एक्साइटेड हो, है ना, या इतने फ्रस्ट्रेशन में हो, आप केबल पे चले जाए, ठीक है? फिर आप बोलेंगे क्या हो गया मेरे साथ, फिर आप बच के निकल कर आ रहे हो बाहर। मेक श्योर दैट केबल शुड बी इन द फ्रंट साइड, आगे की तरफ होना चाहिए केबल, ठीक है? और जितना केबल है उतना ही मूव करना है, ठीक है? तो चले आप वो कोने में, तो वहां से वो गिर रहा है, ठीक है? सो केबल का ध्यान रखना है कि कितना रेंज कितनी है, कहाँ तक है, ठीक है? चलिए, सो ये माइक, इस तरह से माइक हैंडल करेंगे, ठीक है? देन सम एडिशनल टिप्स फॉर प्रैक्टिस। ज्वाइन स्पीच क्लब्स, जहाँ स्पीच की प्रैक्टिस होती है, ऐसे क्लासेस या ऐसे ग्रुप्स, जैसा एक होता है टोस्ट मास्टर। हम लोग नो अबाउट टोस्ट मास्टर्स? किसी को पता है टोस्ट मास्टर? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा, एक तरह से बोलेंगे, इंस्टीट्यूट है वो, विदाउट टीचर विदाउट ट्रेनर, और वहां पर स्पीचेस की प्रैक्टिस होती है। यानी मोर देन 150 कंट्रीज उनके ब्रांचेस हैं। इंडिया में कम से कम 1000 ब्रांचेस होंगे उसके, पुणे में 5 है, औरंगाबाद में 1 ही है। तो वहां क्या होता है, वहां कोई टीचर नहीं होता है, कोई ट्रेनर नहीं होता है, सभी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और महीने में 2 सेशन होते हैं, यानी 2-2 स्लॉट के 4 सेशन होते हैं, सैटरडे संडे, ठीक है? और वहां सिर्फ स्पीच की प्रैक्टिस होती है, सिर्फ स्पीच की प्रैक्टिस होती है। और टोस्ट मास्टर जो है वो यूएस बेस्ड है, उनको यहाँ से डॉलर में पैसे भेजना पड़ते हैं उसकी मेंबरशिप के लिए, ठीक है? तो इस तरह के क्लब अगर आपको मिलते हैं, यू शुड ज्वाइन सच क्लब्स जहाँ स्पीचेस की प्रैक्टिस हो, ठीक है? लेकिन आपकी एज में वो नहीं जमेगा, आपकी एज में आपको ट्रेनर चाहिए, आपको कोच चाहिए। वो प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इफ दे वांट टू प्रैक्टिस देयर पब्लिक स्पीकिंग, दे कैन ज्वाइन दैट, ओके? बट थोड़ा एक्सपेंसिव, ठीक है? उनके 1 महीने की फीस 1 साल के बराबर की, बट इट इज वर्थ, ओके, फॉर प्रोफेशनल, ठीक है? तो ऐसे कोई क्लब ज्वाइन करो, या अपना ग्रुप बनाओ, स्कूल का ग्रुप बनाओ, स्कूल का स्पीकर्स क्लब बनाओ, ठीक है? और हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करो सब मिलकर, ठीक है? देन इमिटेट द ग्रेट स्पीकर्स। अब जो भी आपका फेवरेट स्पीकर है उसको बार बार देखो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे I'll tell you my experience when I started my speaking, public speaking, when I started, I watched one video on YouTube and it was from Pakistan. वो लड़के की स्पीच देखने के बाद मेरे को बड़ा इंकरेजमेंट मिला कि व्हाट स्पीच कैन डू। उसने बड़े बड़ों की बोलती बंद कर दी। He mesmerized the audience within 5 minutes. You can also find it. तो स्पीच में सिर्फ इतना आप वर्ड डालोगे ना कि सदर आली वफार। Have you heard that speech? Nobody? आप खाली इतना डालो यूट्यूब पर सदर आली वफार, तो वो स्पीच आएगी। एक लड़का है, करीबन 14-15 साल का लड़का होगा, लेकिन उसने जो स्पीच दिया था वो बिलीव में पूरे पाकिस्तान को हला कर रख दिया। वो उसका डिलीवरी स्टाइल, उसके एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज,
और उसका कंटेंट जो था, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी कंटेंट था उसका, यानी वहाँ के मौजूदा हालात के ऊपर उसने कंटेंट बनाया। तो ये होता है जब हम अपने फेवरेट स्पीकर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज हमारे अंदर भी आती है, ठीक है। तो सिर्फ अपना ही सर पीटते नहीं बैठना है, वॉट सम गुड स्पीकर्स, अच्छे स्पीकर्स को देखो, ठीक है। देन बी योरसेल्फ, अपने में आप रहो, ठीक है। अपने आप को एकदम इतना जबरदस्ती मत करो, है ना, कि मुझे वो अकबर ओवैसी जैसी स्पीच देनी है तो नहीं देनी, इतनी जिद नहीं करनी, ठीक है। अब मुझे राज ठाकरे जैसी स्पीच देनी है वरना नहीं देनी। बी योरसेल्फ, मेक योर ओन स्टाइल, वॉच एवरीवन, वॉच मेनी स्पीकर्स, कई स्पीकर्स को देखो, अब फिर डिसाइड करो कि विच स्टाइल सूट्स मी, कौन सी स्टाइल मुझे सूट करे, ठीक है। यानी अपने आप बहुत ज़्यादा परेशानी मत डालो कि मैं अगर चिल्लाकर स्पीच नहीं दे सका तो मैं नहीं दूंगा, डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। एंड रिकॉर्ड योर स्पीचेस एंड वॉच देम, अपनी स्पीचेस प्रैक्टिस करते समय खुद रिकॉर्ड करो and check whether you are using gesture, posture or not, whether you are using expressions or not, whether your standing position is right or wrong, whether you are handling mic in a proper way or not. Check everything, okay, and all the time correct, improve yourself, okay. And the last point, seek the feedback, feedback लेना चाहिए, जो भी experts है या जो भी family में है, teachers है, उनसे feedback लेना चाहिए कि this was my speech, what do you think, where I should improve myself, what is wrong in my speech, ठीक है। बिकॉज देखिए होता क्या है ना, हम स्पीच दे रहे हैं, हमको नहीं पता हम क्या गलती करते हैं, सो वी शुड सीक द फीडबैक फ्रॉम अदर्स, वी शुड आस्क देम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, जनरल पब्लिक स्पीकिंग techniques we can say we need to apply, okay. Now the second part is about debate, and I think we don't have debate in our courses, okay, we have only speeches, but quickly I'll explain you something about, okay, debate. We don't have time. How much time we have? Well, we said Okay, to 12:30 we can, okay. they don't have any issues. I don't have any Back to issue. schools? I am going back to the school or from here only they will go? Is it okay if we extend 15 minutes more? Yes? सो डिबेट जो है ना, देखिए डिबेट इज डिफरेंट देन स्पीच। स्पीच क्या होता है कि आपका अपना कंटेंट है और आपने डिलीवर कर दिया। डिबेट इज नॉट लाइक दैट। डिबेट इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग, बिकॉज डिबेट में अब आपको सामने वाले के हिसाब से बात करनी पड़ती है। व्हाट ही सेज यू नीड टू पिक अप एंड काउंटर। व्हाट यू स्पीक द अदर पर्सन चैलेंजेस योर व्यू and then you need to defend, ठीक है। तो डिबेट स्पीच से बहुत अलग है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट रख देता हूँ मैं, जैसे डिबेट में करना क्या है, रिसर्च करना है, ठीक है, अपना टॉपिक जो भी है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक है उस पर क्या आर्गुमेंट हो सकती है पहले से एंटिसिपेट करना है, ठीक है। जैसा अगर मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया इज गुड और बैड, एक जनरल टॉपिक है, वेदर सोशल मीडिया इज गुड और बैड, गुड और बैड। तो अगर मैं गुड बोल रहा हूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि बैड में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वे टू प्रिपेयर डिबेट, ठीक है। डेवलप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट्स इसमें रिपीट होंगे जो हमने जनरल में लिए, ठीक है, जो हमने स्पीच में लिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पीच, उसमें से बहुत सारे पॉइंट यहाँ आने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके डायलॉग क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, ठीक है, रिलीवेंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। एविडेंस आपको देना है जब आप डिबेट कर रहे हो, तो जो बात आप रखते हो उसका एविडेंस भी देना होगा। तो अगर आप कह रहे हो सोशल मीडिया इज वेरी गुड, गिव सम एविडेंस हाउ इट इज गुड, क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं सोशल मीडिया से, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप उसको बैड प्रूव कर रहे हो तो भी एविडेंस देना पड़ेगा कि कैसे सोशल मीडिया से कहीं पर राइट्स हो गए, है ना, कैसे धोखा हो गया, एविडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है। लॉजिक और रीजनिंग भी देनी पड़ेगी डिबेट, ठीक है। स्पीच में इतना नहीं है, स्पीच में वन पे आप आए और आपने डिलीवर कर दिया, बट डिबेट ऐसा नहीं है।
डिबेट में आपको सामने वाले की बात को चैलेंज करना है, अगर उसने आपकी बात को चैलेंज किया तो अपनी बात को डिफेंड करना है। दिस इज डिबेट, ठीक है। इफेक्टिव डिलीवरी, ठीक है, इनोसिएशन, क्लैरिटी, लाइक द सेम मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस होना चाहिए डिबेट में भी, द सेम वी डिस्कस। आर्गुमेंटेटिव स्ट्रैटेजी, अब एक होता है आर्गुमेंटेटिव स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट प्लीज, प्लीज चेंज। हाँ, what is argumentative strategy? के first present your stand, what is your stand, okay, whether you are supporting the topic or opposing the topic. Then refutation, के सामने वाले ने अगर कोई बात रखा है तो उसको अपोज कैसे करना है, ठीक है। तो आपको अपोज विद एविडेंस करना पड़ेगा, अपोज विद लॉजिक करना पड़ेगा, अपोज विद इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं कह रहा हूँ ना नहीं चलता है मतलब नहीं चलता, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपोज भी आपको एविडेंस के साथ करना है, ठीक है। अगर कोई आपको अपोज करता है तो उसको कहते हैं रिब्यूटल, जो कि डिबेट कंपटीशन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिब्यूटल, व्हाट इज रिब्यूटल? कि अगर आपने कोई बात रखी और सामने वाला अगर उस बात को रिजेक्ट करता है या उसको चैलेंज करता है, नाउ हाउ डू यू डिफेंड योर स्टैंड, दैट इज कॉल्ड रिब्यूटल, ठीक है। और बिलीव मी, डिबेट आप तभी जीतते हो जब आप रिब्यूटल अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसके बाद पिक अप द लाइन एंड रिक्रिएट द मोशन। अब हर बार डिबेट में क्या होता है कि आपको अपना कंटेंट लाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले ने क्या बात कही है उसमें से कुछ पॉइंट उठाने हैं और आप कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पिक अप द लाइन्स फ्रॉम ओपोनेंट्स कॉन्वर्सेशन, पिक अप द लाइन, oppose it and challenge the person to again defend it, ठीक है। So this is very important point, pick up the line, okay, in debate. Again, persuasion, आपको convince करना होगा that my stand is better than your stand. This is all about debate. What I believe is better than your belief, ठीक है। And it is possible only when you convince, आपका convincing power होना चाहिए जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनिंग, डिबेटिंग में क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे अगर आपके पास अपने कोई पॉइंट नहीं है और अगर आपके ओपोनेंट ने कोई बात रखी है तो आप उसको क्वेश्चन करके डिबेट को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे किसी ने कहा कि सोशल मीडिया इज वेरी गुड एंड इट हैज नो एरर्स। अब आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो, दैट इज इट द ओनली मीडिया टू कनेक्ट विद पीपल, इज इट द ओनली मीडिया। यहाँ आपने क्या किया, आपने अब उसको नई प्रॉब्लम में डाल दिया उसको, ठीक है। तो हर बार डिबेट में जरूरी नहीं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करो, आपको कभी कभी सामने वाले से क्वेश्चन पूछकर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब डिबेट को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सेम वैसे ही जैसे आप स्पीच करते हो प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने पॉइंट को एनालाइज करना चाहिए, जो पॉसिबल आर्गुमेंट हो सकता है वो समझना है आपको, ठीक है। और द एडिशनल टिप्स द सेम, स्टे काम, ओके, एंड बी रिस्पेक्टफुल। देखिए डिबेट में अक्सर क्या होता है ना, अक्सर लोग थोड़े से रूड हो जाते हैं डिबेट, ठीक है, रूड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। बी रिलैक्स, बी रिस्पेक्टफुल। आपको सामने वाले की ओपिनियन पे अटैक करना है, उस पर अटैक नहीं करना है, ठीक है। सो डोंट कमेंट पर्सनली, कभी भी आपके ओपोनेंट को पर्सनल कमेंट नहीं करना है, उसको ये नहीं बोलना है कि तुम देखो अपना फोन, तुम खुद सोशल मीडिया यूज करते हो, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। और अगर कोई आपको पर्सनल कमेंट करे, डोंट टेक इट पर्सनल, इट्स अ गेम, इट्स अ कंपटीशन, ठीक है। सो डिबेट में कभी भी पर्सनल कमेंट नहीं करना है, डिबेट में कभी भी पॉलिटिकल, रिलीजियस पॉइंट्स नहीं लाने, ठीक है। क्योंकि रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिर रेशियल जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत पर्सनल हो जाता है, ठीक है। देन बी अडैप्टेबल, बी फ्लेक्सिबल। डिबेट में आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना होगा, ठीक है। चाहे आपके सारे पॉइंट को रिजेक्ट कर रहा है उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। एंड लिसन अटेंटिवली। डिबेट में आपको सुनना बहुत जरूरी है। देखो स्पीच में सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना ही है, लेकिन डिबेट में व्हाट अदर पर्सन इज स्पीकिंग यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली, देन ओनली यू कैन अपोज, ठीक है। सो इट वाज अबाउट डिबेट। Now let's talk about content structure. Next please.
Again, next. So what I will do, I'll share PDF file of these notes with you. Okay? Is it okay now? I'll share with you. You can share all with all the participants. So I will make a PDF file of this particular content and I will share it with you. Okay? So what is in content writing? Structure. सबसे पहले तो आपका जो भी आप स्पीच बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर मटेरियल, व्हाट इज योर टॉपिक, ओके? और उस टॉपिक में क्या क्या ऐड हो सकता है, जैसा मटेरियल क्या क्या हो सकता है, एक आपके टॉपिक का जनरल डेफिनेशन हो सकता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है? उसके टाइप्स हो सकते हैं। देखिए ये आपके कंटेंट के मटेरियल के टाइप्स हैं, ठीक है? उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड कोई सर्वे रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है? कोई स्टोरी हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, ये है कंटेंट मटेरियल, ठीक है? ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है? और व्हाटएवर स्पीच यू प्रिपेयर, स्टोर इन योर माइंड, रट्टा नहीं मारना। देखो पॉइंट वाइज स्पीच तैयार करनी है, पैराग्राफ पढ़ते नहीं बैठने, आपको सिर्फ पॉइंट याद होने चाहिए। बिकॉज इफ यू रिमेंबर द पॉइंट्स व्हेन यू कम हियर, ओनली यू नीड टू रिकॉल द पॉइंट और अपने फिंगर्स को काम दे दो। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने तो होते नहीं, 5 आर सफिशिएंट, ओके? क्योंकि अगर आपकी स्पीच 5 मिनट की है तो 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। तो अपने आप को ना अपने फिंगर्स को असाइन कर दो, दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंस, दिस इज एडवांटेज, दिस इज डिसएडवांटेज एंड दिस इज माय सजेशन। तो जब आप स्पीच दोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहां तक पहुंच गया मैं, आप डन दिस 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 एंड दिस, ठीक है? देन अलग अलग लैंग्वेज यूज करो, ठीक है? यानी कभी अगर स्पीच इंग्लिश में है लेकिन कोई बहुत अच्छा कंटेंट आप उर्दू में शेयर कर सकते हो, मराठी में शेयर कर सकते हो, यू कैन, ठीक है? तो मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? लेकिन देखिए सेकंड लैंग्वेज तब यूज नहीं करनी है कि आप इंग्लिश भूल गए, तब नहीं करनी, इंटेंशनली यूज करनी है, ठीक है? जैसे मैंने कहा शेयर बोलना है तो उर्दू में बोलना पड़ेगा ना, उसको थोड़ी ट्रांसलेट इंग्लिश में करके बोलोगे आप, ठीक है? सो अ लिटिल डिफरेंट लैंग्वेज विल ऐड कलर टू योर स्पीच, ओके? देन प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? बिकॉज जो स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर सकता है वो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है? देन ऑडियंस, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, एज आई सेड अर्लियर, कंसिडरेशन में मैंने क्या कहा था, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, ठीक है? एनालाइज योर ऑडियंस एंड टेलर, कस्टमाइज योर मैसेज अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, जैसी ऑडियंस वैसा मैसेज, ठीक है? स्ट्रॉन्ग थेसिस, अपनी जो थेसिस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो आपका टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, आपकी स्पीच उसके आसपास चलती रहनी चाहिए, ठीक है? यानी आपने कोई एग्जांपल दे दी, वापस सेंटर पॉइंट पे आ जाओ, फिर आपने कोई इंसिडेंट सुनाया, फिर सेंटर पॉइंट पे आ जाओ, आपने कोई न्यूज आर्टिकल सुनाया, फिर सेंटर पॉइंट पे आ जाओ। तो सेंटर पॉइंट आपका बार बार हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है? उसको रिपीट करना चाहिए। देन ऑर्गेनाइज योर स्पीच, क्लियर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। देखिए स्पीच में ये 3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, जब व्हेन यू मेक द स्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है? मिडिल पार्ट में क्या क्या होगा, तो देखिए मिडिल पार्ट में मैंने कहा ना एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, ठीक है? चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, ये सब मिडिल पार्ट में होगा, ठीक है? और कंक्लूजन क्या है, पूरी स्पीच का कंक्लूजन समरी होगा, ठीक है? अगेन रिवाइज ऑल द की पॉइंट्स एंड देन कंक्लूड, ठीक है? अगेन आउटलाइन योर पॉइंट्स इजी टू फॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है? यानी ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि आपकी ऑडियंस को भी याद हो जाए कि आपकी स्पीच क्या है, ठीक है? तो नंबर्स देकर, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर कंक्लूडिंग यू कैन से सो फ्रेंड्स what we have discussed here, what I said, number 1, the number 2, 3 and 4, now the last point I am going to share with you. इससे क्या ये एक स्ट्रक्चर है, आपकी ऑडियंस को समझ में आता है, ठीक है? देन एंगेजिंग कंटेंट, अब आपका कंटेंट जो है वो एंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है? भाषण नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब एंगेजिंग कंटेंट कैसे होगा, जैसे मैंने कहा अलग अलग लैंग्वेज यूज करो, स्टोरी यूज करो, कुछ इमोशनल एलिमेंट यूज करो, इमोशनल, जैसे अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो तो उसमें लेकर आओ
just think about the people, those who are cheated through social media, they lost their money. Think about the people whose videos and photos are misused, and now they are regretting a lot. थोड़ा इमोशनल भी लेकर आओ, है ना, जैसे मनोहर जमा साहब करते है ना, सुने आप लोग, सुनते ही हम, तो मनोहर जमा साहब जो है आमतौर से इमोशनल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशनल जो है ना ऑडियंस को कनेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन इमोशन के साथ साथ में लॉजिक भी होना चाहिए और मैसेज भी होना चाहिए, ठीक है। देन मेटाफर्स, कुछ मेटाफर्स यूज करो, शेर, जोक्स, ठीक है, कोई सर्वे रिपोर्ट, ये सब अलग अलग मटेरियल आपकी स्पीच में होना चाहिए, ठीक है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अगेन फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट कंटेंट राइटिंग, दैट आपके कंटेंट में जो है इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो पहली लाइन से ऑडियंस एंगेज हो जाए, पहली लाइन से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पहली लाइन से आपको एंगेज करना ऑडियंस, दैट फॉर एग्जांपल सपोज यू अटेंड अ पार्टी वेयर you reach there in a very posh dress, you reach there in your Mercedes, but if someone asks you something in English and you fail to respond, just imagine the situation. So ladies and gentlemen, my topic is communication skill. It is very important to learn communication. क्या किया मैंने, ऑडियंस को पहले ही इंगेज कर दिया कि दिस इज माय टॉपिक एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई हैव गिवन अ सिचुएशन, तो सिचुएशन देकर आप ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेमोरेबल कंक्लूजन, जब आप कंक्लूजन दोगे तो वो मेमोरेबल होना चाहिए, ठीक है। एक तो समराइज करेंगे और लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, आपका कंक्लूजन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि जब ये कंपटीशन है तो कंपटीशन में आपके जो जजेस है उन्होंने आपको याद रखना कि यार एक आया था, और याद रखिए दो ही चीजें याद होती है जजेस से, एक तो बिगिनिंग और एक एंडिंग। तो चाहे आपकी बिगिनिंग ठीक नहीं हुई हो, अपनी एंडिंग को इतना इंप्रेसिव बनाओ कि जजेस के माइंड में होना चाहिए कि यार वो लास्ट में बड़ी अच्छी बात बोल कर गया, ठीक है। सो कंक्लूजन शुड बी इंप्रेसिव। देन फॉर स्पीचेस, प्रैक्टिस, रिहर्सल, टेक द फीडबैक, प्रोजेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड बी फैमिलियर विथ योर टॉपिक। अब देखिए टॉपिक प्रिपेयर कैसे करने होता है, जैसे आपके स्पीच कॉम्पिटिशन 8 दिन बाद है, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट बना लेनी है और वो जो पॉइंट स्क्रिप्ट में है उसको चलते फिरते रिवाइज करते रहना है, किसी से शेयर कर लेना है। जैसे आपकी स्पीच में 5 पॉइंट है, एक फ्रेंड को पकड़ के एक पॉइंट सुना दिया, दूसरे को पकड़ के दूसरे को सुना दिया, तीसरा पॉइंट तीसरे को सुना दिया, चौथा पॉइंट खाला को सुना दिया, खाला आपको बताया क्या ऐसे हुआ था, मतलब हाँ बेटा ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था। आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो चलते फिरते, ठीक है। तो पॉइंट आपके रिवाइज होते रहने चाहिए, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट्स है पेपर से आपके माइंड में स्टोर करना है, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू शेयर इट अगेन एंड अगेन, ओके। देन एडिशनल पॉइंट, कीप सिंपल, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बी माइंडफुल, चेक योर पेस, टोन, स्पीच, pitch, body language and tone, which I have already discussed, okay. And the last few points, please, next slide. Before this, पॉजिटिव माइंडसेट। अब माइंडसेट कैसे पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेंटेन द पॉजिटिव माइंडसेट, जस्ट रेज द हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट, क्विकली, बोथ द हैंड्स, बोथ द हैंड्स, ऊपर तक दिखने रहे मुझे, हाँ, नाउ कीप इट डाउन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो ऑडियंस के साथ, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था आपको नींद आ रही है, ठीक है। सो यहाँ माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले विजुअलाइज सक्सेस के, अगर मैंने पार्टिसिपेट किया है तो जीतने के लिए किया है, मैंने पार्टिसिपेट किया है तो जीतने के लिए किया है, हाँ ठीक है, हार में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद इफ इट इज पॉसिबल फॉर वन पर्सन, इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। अगर कोई एक कंपटीशन जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूँ, ठीक है। देन आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ टू परफॉर्म। जितना परफॉर्मेंस के लिए चाहिए उतना प्रिपेयर किया है मैंने। अपने आप को डाउट मत दो, मेरे को टाइम भी नहीं मिला तो गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, नहीं। जितना प्रिपेयर करना था पहले करना है। वहां पहुंचने के बाद माइंडसेट क्या होना चाहिए, आई प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है। देन प्राइज तभी मिलेगा जब प्रिपरेशन होगा और परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। ये माइंडसेट होना चाहिए। एंड ऑडियंस इज टू सपोर्ट यू। जो ऑडियंस आई है, जो जजेस बैठे हैं, वो आपके सपोर्ट के लिए है। दे आर नॉट योर क्रिटिक्स। वो सिर्फ आपकी बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं। दे वांट टू सी यू विनिंग दिस कंपटीशन। ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि देखो वो भूल रहा है, देखो ये ऐसे है, ये तो ऐसे ही करेंगे, वो तो वैसे ही करेंगे। डोंट डू दिस। These people are here for me. Okay. Then minor mistakes are okay. Minor mistakes are okay. यानी एक और दो मिस्टेक आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। Even if you commit mistake, go on, continue करो, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई, वापस से रीस्टार्ट, रीगेन द एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो माइनर मिस्टेक्स आर acceptable, ठीक है। And the last point, that fake it until you make it. अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, कम से कम दिखाओ मैं कॉन्फिडेंट। स्टैंडिंग पोजीशन करेक्ट कर लो, भले आप अंदर से डरे हुए हो, बट ऑडियंस को ये फील कराओ दैट आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फेक इट अंटिल यू मेक इट। एंड नेक्स्ट स्लाइड, don't forget to smile. Yeah? It's a competition, it's an opportunity, ठीक है। It's not punishment. हारने में कोई punishment है क्या? आपका स्पीच कंपटीशन हारने पे किसी को कहा जाएगा कि आप तेरे 10 मार्क्स कम होने वाले, ऐसा है किसी को नहीं है, ठीक है। So just enjoy the competition, be relaxed, be enthusiastic and be hopeful. If I perform according to my preparation, I will win this competition. Okay, next please, the last. And think, feel and act like a champion. See, there are two types of horses. आपको क्या लगता है चैंपियन कौन सा हॉर्स चैंपियन है, नंबर 1 और नंबर 2? हॉर्स तो दोनों भी है। तो जो मोशन में है, जो प्रैक्टिस में है, जो मूविंग कर रहा है, वो चैंपियन है। जो एक जगह बैठ गया है ना, बेफिक्र हो गया है, ठीक है, आएगी अपॉर्चुनिटी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो चैंपियन है, ठीक है। सो थिंक, फील एंड एक्ट लाइक अ चैंपियन, ओके। यस, सो द लास्ट, so we have concluded. I think I have covered all the points very well, and I hope these tools and techniques will help you to perform better, because we want a very tough competition. We want you all to perform to your best level, so that we can see some good content, so that we can see some good presentation, and it should be a very tough competition. We don't want that only 2-3 students should perform well and rest of the students should be average. No, all should perform very well. Judges should be confused. Who is first and who is second? This kind of competition we are expecting here. Okay. So at the last, the message is you can follow me for more learning. See, I have recorded such videos on my YouTube channel, Ask Parvez Khan. You can note down Ask Parvez Khan is a YouTube channel where you will find more than 550 videos. More than 550 videos about communication, mind programming, career and such related topics you will find there. Okay, especially speech competition से related आपको बहुत videos मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, that you can collect and you can prepare. Now in the last, if you have any question you can ask, any question or any doubt.